हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फोसिस के सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्फोसिस डाउट सॉल्व। अगर आपने 16 में या 13 जून को एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं स्टेप टू स्टेप, वन टू वन वर्ड आपको सभी चीजें जो है वो क्लियर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो भी थंबनेल में मेंशन किए गए, सभी पॉइंट्स मैं आपको कवर करने वाला हूं। उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप सेम जो भी मैंने मेंशन किया है इस वीडियो में वही आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरली चीजें बता रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक के जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाए एंड कुछ भी मिस ना हो। जैसे कि आप पहला पॉइंट देख सकते हो, इंटरव्यू मेल नॉट रिसीव। So we will talk about that also, that many of the candidate haven't received interview mail yet. So we will talk about that also. And the second point is interview reschedule. Okay, so many of the candidate got interview mail that their interview is scheduled, but after that the interview is rescheduled. Okay, so we will talk about that also. What is the solution for the rescheduled interview? When will their interview will be rescheduled? Okay, or it will reschedule or not? Okay, so that we will talk about that also. And the third point is interview result. Okay, so we will talk about interview result, that many of the candidates have done with their interview but they haven't received interview result yet. Okay, so how you will receive interview result and how much time will it take to receive interview result. And the fourth point is survey mail. What is the survey, what is survey mail, what the survey mail indicates, I will tell about everything regarding survey mail. And the last point is rejection mail. So we will talk about rejection mail, who can receive rejection mail, what are the chances of receiving a rejection mail, and everything. Okay, so I will talk about everything word to word, give you solution for your problem. So please watch video till the end, and if you get any help from this video, don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel if you are new to my YouTube channel. मैं सभी चीजें आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट ऑल द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फोसिस इंटरव्यू, ओके, एंड एवरीथिंग इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस. So first of all, what happened? Your exam is conducted. Okay, as you all know, your exam was conducted on 16th May and 13 June. Okay, after that you receive result. Okay, after some days you will get to see a result mail. Okay, so I will show you what result mail looks like. Okay, so you will get to see a result mail like this. Thank you for participating in the Infosys online test. So okay, here you will see a date where you have given exam. Okay, congratulations, you have cleared the online test to qualify for the interview round of the process. Okay, so you will get to see a mail like this, where they indicated that you have cleared the exam. Okay, now they have asked for basic details, like you have to fill basic form and fill some details. Okay, before a deadline. Okay, so if you fill all your details, then your interview will be scheduled. Before interview you have to fill this form anyhow. Okay, when you fill this form, then only your interview will be scheduled. Okay, so you will get to see a mail like this: congratulations on qualifying for the interview round. Okay, so this is the first process after exam. When you clear exam, you will get to see a mail like this that you have cleared the exam. So this is known as result of exam. Okay, now let's talk about interview mail. Okay, so once you fill this form, you will get to see a interview mail. Okay, here you can see your interview with Infosys has been scheduled. So this is the interview mail you will receive after getting result and after filling the particular form and the basic details. Okay, so you can see here the date are mentioned. Okay, date and time, everything is mentioned here, and all the details are mentioned that this will be a virtual round and you have cleared the exam, and the date, duration, day and time, everything is mentioned in this mail. Okay, so यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है रिजल्ट के बाद आपको जो फॉर्म एंड डिटेल्स फिलअप करने बोली गई थी वो आप फिलअप कर देते हो। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको मेल आता है जहां पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। अब उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन but many candidate haven't received interview mail yet. Okay, so what is the solution for it? Okay, so I will tell you about everything. Okay, once you receive
mail like this. Okay, once you receive this mail that you have cleared the exam, then 100% you will receive interview mail. Okay, no need to worry about it. You have received this mail that you have qualified the exam, then you will definitely receive interview mail. Okay, there are 0% chances that you will not receive interview mail. Okay, so no need to worry about it. You will definitely receive. There are 100% chances. Okay, so it may takes time, but definitely your interview will be scheduled. तो जिसको भी इंटरव्यू मेल नहीं आया है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू होने ही वाला है. ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, सॉरी एग्जाम क्लियर हुआ है, तो इंटरव्यू डेफिनेटली आने ही वाला है. हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन डेफिनेटली आएगा. Now the second point is interview reschedule. Okay, so many of the candidate got interview mail, but due to some reason their interview got rescheduled. Okay, you can see in this mail that due to some unavoidable circumstances your interview for tomorrow 18 June is cancelled. This will reschedule and you will be informed about the change date and time. Regret the inconvenience caused. Okay, so this is the reschedule interview mail due to some reason. Okay, this is totally depend on HR किसी रीजन की वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाता है, उसके वजह से आपका जो इंटरव्यू है वो रीशेड्यूल हो जाता है. ठीक है, ये टोटली एचआर के ऊपर डिपेंड है. अगर एचआर नहीं अटेंड कर पाता आपका इंटरव्यू, इसलिए आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल होता है. बाकी कोई भी रीजन नहीं है इसके पीछे. ओके, सो नो नीड टू वरी इफ यू गॉट इंटरव्यू रीशेड्यूल मेल. Your interview will be conducted later on. No need to worry about anything. Your interview will be 100% rescheduled. Okay, so this is the interview reschedule. Now what is the reason behind interview reschedule? I have told you that due to HR interview is rescheduled. Okay, because it was not possible, or due to any reason from HR interview was rescheduled. Okay, now when will the interview will be the reschedule? Okay, once you have got reschedule mail, when you will get interview again. Okay, so it can take a long time. Let me explain you in simple language. Once you got interview, okay, so all the candidates who have cleared the exam got the interview slot. Okay, for suppose they have got interview slot booked for 20 days. Okay, so after all the interviews are complete, when the slot is complete, after that the reschedule interview will be conducted. Okay, so this is the reason. अगर आपका reschedule हुआ है इंटरव्यू, इसका मतलब आपने जो एग्जाम दी है उसमें सबका इंटरव्यू होने वाला है. फिर इंटरव्यू reschedule किसका किसका होने वाला है? जो जिस एचआर के किसी रीजन की वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो रीशेड्यूल हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. आपका इंटरव्यू जो है वो डेफिनेटली होने वाला है. हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी इंटरव्यू स्लॉट बुक है ऑलरेडी वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपका इंटरव्यू फिर से शेड्यूल होने वाला है. तो तब तक के लिए आपको वेट करना है. यही था इंटरव्यू रीशेड्यूल से रिलेटेड. आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी जो स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड है इंटरव्यू के, वो कंप्लीट होने के बाद आपका जो इंटरव्यू है फिर से रीशेड्यूल होने वाला है. ठीक है, फिर आ जाता है इंटरव्यू रिजल्ट. सो इंटरव्यू रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं. ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको मेल देखने मिल जाता है. Congratulations, you have cleared the interview round to receive a final job offer letter for. यहाँ पे आपको अपना रोल देखने मिल जाता है, सैलरी और भी बेसिक डिटेल्स देखने में मिल जाती है. ओके, सो इस तरह से आपको इंटरव्यू का रिजल्ट देखने में मिल जाता है. ओके, सो मेनी ऑफ द कैंडिडेट हैवंट डन विद द इंटरव्यू बट हैवंट रिसीव्ड इंटरव्यू रिजल्ट. ओके, सो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा हुआ है कि उनका इंटरव्यू तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक के इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं मिला है. तो उससे रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको अभी तक के इंटरव्यू जो है वो आपका हो चुका है, लेकिन आपको अभी तक के इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं मिला है, तो डेफिनेटली इसमें भी कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक बार इंटरव्यू हो चुका है. तो डेफिनेटली इसके दो ऑप्शन होने वाले हैं. या तो आपको सिलेक्शन मेल मिलने वाला है, या तो रिजेक्शन मेल मिलने वाला है. ठीक है, लेकिन सिलेक्शन मेल मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है. रिजेक्शन मेल बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मतलब 1 to 2% लोगों को रिजेक्शन मेल मिलता है. ऑलमोस्ट सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं. तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का रिजल्ट मिल जाएगा. आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इससे रिलेटेड. ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो कि इंटरव्यू का रिजल्ट हो सकता है कि शेड्यूल टाइम लग रहा हो, डिले हो रही है प्रोसेस, लेकिन आपको वेट करना है, क्योंकि आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का रिजल्ट मिलने ही वाला है. फिर लास्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है सर्वे मेल इंडिकेट्स. ओके, सो व्हाट इज द सर्वे मेल? सो आपको कुछ इस तरह का सर्वे मेल देखने मिल जाता है. जैसे कि आपको इंटरव्यू मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, आपको एक सर्वे मेल देखने मिल जाता है. ओके, मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से आपको सर्वे मेल देखने मिल जाता है.
ओके, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है कि आपको एक सर्वे मेल रिसीव्ड होता है। ये सर्वे मेल आपको फिलअप करना होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स ऐड करनी होती है और यहाँ पे जो भी चीजें पूछी गई है वो सभी चीजें आपको मेंशन करनी होती है इस सर्वे मेल में। उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर का मेल आता है। तो इस तरह से आपको सर्वे मेल रिसीव होता है, जो कि आपको फिलअप करना होता है। अगर आपने सर्वे मेल फिल कर दिया तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर मिलने ही वाला है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बैठते हो, तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर मिलने ही वाला है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी रीजन की वजह से आपको इन्फोसिस टीम को कांटेक्ट करना है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला है या तो आपको इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, अगर आप मेल करते हो तो आपको दो ही रिप्लाई मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैव ऑलरेडी रिसीव्ड मेल एंड द सेकंड मेल इज प्लीज वेट फॉर द सम टाइम एज रिक्रूटमेंट टीम इज स्टिल वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो यही दो मेल मिलने वाले, यही दो रिस्पॉन्स मिलने वाले आपको इन्फोसिस की तरफ से। तो आपको मेल नहीं करना है इन्फोसिस टीम को, आपको सिंपली वेट करना है, पेशेंस रखना है जब तक कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता। और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर नहीं होता, उसके लिए आपको सिंपली पेशेंस रखना है। इन्फोसिस टीम जो है वो आपको मेल कर देंगे। ठीक है, किसी किसी को सर्वे मेल देखने मिलता है, किसी किसी को डायरेक्ट ही ऑफर लेटर आ जाता है। देख सकते हो यहाँ पर इन्हें सर्वे मेल नहीं मिला है, डायरेक्ट ही ऑफर लेटर मिल गया है। किसी किसी को सर्वे मेल फिल करने के बाद ऑफर लेटर आता है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपको सर्वे मेल मिला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिला है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात कर ली जाए रिजेक्शन मेल की। सो रिजेक्शन मेल किसको आता है? रिजेक्शन मेल आता है अगर आपने जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं किए तो आपको रिजेक्शन मेल देखने मिल जाता है, या तो अगर आपने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू नहीं क्लियर किया है तो रिजेक्शन मेल देखने मिल जाता है। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद रिजेक्शन मेल बहुत ही कम लोगों को आता है, लेकिन एग्जाम अगर आपने क्लियर नहीं की है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आपको रिजेक्शन मेल देखने मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको रिजेक्शन देखने मिल जाता है। वी रिफर टू योर एप्लीकेशन एंड द सब्सिक्वेंट पार्टिसिपेशन इन द ऑनलाइन टेस्ट एज पार्ट ऑफ आवर सिलेक्शन प्रोसेस। We regret to inform you that you have not cleared the same, hence we are unable to take your profile forward। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ देखने मिल जाता है। ये इस तरह का आपको रिजेक्शन मेल देखने मिल जाता है। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो। मैंने सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो डाउट है प्लीज उसका आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो सेम चीज मत पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।